Okay, guys, I see many of you have joined. We can start. Can someone please confirm if my screen is visible? Yes. Yes. Okay. So guys, we'll start creating a virtual machine first, right? And there are many things which we will skip today. Not only today, but while creating virtual machines also. So don't worry, we are not skipping those topics altogether. But if we take this approach that on the same window, I start teaching you everything, it will be very confusing for you. So I have divided that in segments. If you check the OneNote also, right, we have compute, under which our virtual machine comes. Then we have network, then we have storage. So when we are working on compute, whatever the network options appear, we will not learn about them. I will not explain them. And you won't even worry about them. You take as it is, whatever default you get. Similar with storage account. While creating a machine, whatever storage options you get, we will not learn them. We will not discuss them. You will take the default options which you get. All right. Network, we will learn as a different topic, a different segment. And there we will cover everything, whatever we missed here while creating the machine under network, that we will cover when we specifically learn network, right? Similarly, whatever we have skipped about storage while creating the machine, that we are going to learn when we talk about storage. Is it clear to everyone? So if I skip few things, do not think that we are not learning them or we are skipping them just because we don't have time. We are doing that as per the plan. So we can go in a smooth manner. Otherwise, if I start teaching you yahi se कि okay, security type kya hota hai, what is zone, what is availability center, then it will be very confusing for you, right? So I'll keep them separate, segregated in segment type. Clear and understood, guys? Any doubts, any questions, any suggestion? No. No. Okay, fine then. Let's proceed. ठीक है? Very, this is very common and frequently asked question. I mean, many questions related to virtual machine. You will get many questions. Most of the time, हमारे पूरे training के, I think maximum weightage or maximum percentage of the time we will spend on virtual machine. Very crucial topic, very important topic. So please be focused. And if you do not understand, do not wait कि हम इसको कल पूछेंगे, 4 session बाद पूछेंगे. Don't do that. Please make sure that you ask it right away so I can clear the doubts. So if someone is asking you to create a machine, how do you get that task? What all information do you get? That all I will explain. Don't worry. And then I will be giving you a task also today to create a virtual machine. उसमें मैं चीजें mention कर दूंगा. But let me show it to you how to create a virtual machine. So you are on this page, home page. Normally when you log in, you will be on this page. You won't see this maybe because these are recently used services I have been using. In your case, you could see it blank. You could anything you could see. You will go to virtual machines. You can go it from here if you see. If not, you will come here and you will search for virtual machines. You click here on virtual machines. In your case, you will not see any machine because there is, as far as I understand, in Sunil subscription, there are no machines. So you won't see any machine. Or maybe if you are doing your practical tomorrow and by today someone has created the machine, you will see their machine. Okay, let's say that, let me check the list of the users which we have. Under Sunil subscription, we have Prabhat, we have Sonali, we have Shahrukh. So let's say Shahrukh is creating his machine today. He won't see any machine. There are no machines. So he'll create his machine. Tomorrow when Sonali tries to do that, she will be able to see Shahrukh's machine. But do you think Sonali will be able to delete Shahrukh's machine? Just click here and delete. Will she be able to do this? What do you guys think? If yes, how? If No. not, why? Why not? What is the No. logic behind that? Because that has been created by the Sunil, and in the Sunil subscription, she won't be able to delete that resource or that virtual machine. She has read access to that resource group.
in which the virtual machine is created. Yes. That's When the reason you're able Sunil to will see create only. it, yes, when Sunil will create it, he will select his own resource group. And Sonali will not have access to delete anything from Sunil's resource group. Right? Can Sunil create a machine in Sonali's resource group? He has similar access, reader access on subscription, owner access on his resource group. Can he create a machine in Sonali's resource group? No, because we do not have the access to Sonali's resource group. Yes, they completely view access. You cannot add anything, you cannot edit anything, you cannot do anything about it. You guys will be able to see each other's machine. Even you can click on the machine and see कि यार जो मैंने homework दिया था उसमें लोगों ने correct किया या नहीं किया. You can check these things, but you cannot even start or stop the machine, other machines. But when it comes to your machine, which is in your resource group, you will be able to do that. Right? So let's start working on this, guys. Normally, and I told you at the beginning, people who join late maybe can watch that session, that we are focusing on GUI, right? I will not be showing you the PowerShell shortcut of creating the machine. That won't even take 1 minute. Within a minute, my machine will be up and running, but आपके समझ में कुछ नहीं आएगा उसमें. PowerShell will do only once you get the understanding of your GUI. Graphical user interface की understanding आएगी, उसके बाद हम PowerShell करेंगे. Is it clear to everyone? Yes. Okay, great. So how do you get a request? Oh, people who are working in service desk or tech support, how do you guys get your request, by the way? Any request? Password reset की हो, किसी भी तरह की request, how do you get that? Ticket. We get that request. Ticket using which tool? ServiceNow. Remedy. ServiceNow, ServiceNow. Remedy. Yes. So you guys have understanding of a ticketing tool, right? A ticketing tool Yes. is nothing, guys. A ticketing tool, it can be ServiceNow. It's a ticketing tool. It could be PagerDuty. It is a ticketing tool. It is nothing, but क्या होता है उसमें? आपके ओनर, आपके जो एप्लीकेशन ओनर्स है या मैनेजर है या कोई और दूसरा डिपार्टमेंट हो, whoever is requesting something to you. Let's say there is a marketing department. They want a website, virtual machine के लिए वेबसाइट बनाना है. वेबसाइट बनाने का काम तो आप नहीं करोगे. उन्होंने डेवलपर्स हायर कर रखे. डेवलपर सेट कि हमको एक मशीन दे दो. मशीन के लिए they will come to you. So how will they ask you to create a machine? They cannot simply pick up the call and tell you कि एक machine बना दो. No, that's not the way it works. They will have to send something in writing. So they will send an email or a ticket. So ticket कुछ ऐसा दिखता है. Look at this. These are the ticket numbers at the left. PagerDuty is one of the ticketing tool. We have ServiceNow from HP. We have PagerDuty. We have iSupport. There are n number of ticketing tools, right? तो इस तरह से एक टिकट आपको असाइन होता है. उसमें सारी डिटेल्स होगी. उसमें अटैचमेंट होता है which is normally called build sheet. Build sheet is what, guys? उसमें आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती है. Let's see if I can find some build sheet. If not, I have my own जो हमने पहले भी यूज की है. Let me check this. Just give me 1 minute. Let me see if I can find it. It is not here. Build sheet कुछ नहीं होता है, guys. एक एक्सेल फाइल होती है, राइट? उस एक्सेल फाइल में आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है. What are the details? Like you are an Azure administrator. You know how to create a machine, but you are not the business administrator. आपको ये नहीं पता है that कि उस मशीन के पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सारी डिटेल्स क्या होगी. So all these details you get. Let me copy this. I found something. Let me see if I can copy it here. Or I'll share it with you. Let me work on that properly and I'll share it with you. The build sheet. It's not necessary कि हमेशा Excel file होगी. ठीक है? But what all information it will have, let's see that and you'll understand the concept. Very first thing, it will have
which subscription are you referring to? Because I told you this is your training account, so you have only one subscription. But when you go to production environment, you may have multiple subscription. कुछ नहीं तो 3 तो definitely होंगे. Actual environment में 3 तो definitely होंगे. Dev, prod and test. So this user who's asking you to create a machine, वो किस subscription की बात कर रहा है? He wants you to create in UT Cloud, he wants to create in Pay As You Go, या कोई और subscription है उसकी. Bill sheet में पहली चीज वो होगी. Next thing, is he asking you to create a resource group? Is he saying कि हाँ ये एक हमारा नया प्रोजेक्ट आने वाला है, so create a new resource group? Or is he asking you to use one of the existing resource group, stating कि यार वहां पे मेरे ऑलरेडी 5 मशीन है, ठीक है, लेट्स से इट्स Quattro में मेरे 5 machines are already there. So let's create a sixth one. Are you using an existing resource group or do you want to create a resource group? Now, to create a resource group, obviously you should have access on subscription level. If you get a task like this and if you do not have contributor access at the subscription level, you will not be able to do it. Then you will approach, किसको approach करोगे आप? You want the contributor access on subscription. As of now, you have reader access and you have owner access or contributor access on 2 resource groups जिस client के लिए आप काम करते हो. But this is a client who's asking to create a new resource group और request approval वगैरह होके सब आ चुकी है. Manager approval है, finance का approval है, सब कुछ है आपके पास. You want to create it and now you realize कि आपके पास subscription level पे सिर्फ reader access है. So to whom will you approach? I will approach to owner because the owner only have the the access for Yes. that is So you will go ahead and search your subscription. You will see who's the owner of the subscription. Most of the time आपका मैनेजर होगा, पता होता है. मैं लिटरली जाके सर्च कभी नहीं करना पड़ता है, सबको पता होता है when you work in a team कि यार इसके पास owner access है. But yes, technically you will go to the person who has owner access. It could be your architect, it could be your lead architect, it could be your people manager, it could be your tech lead. या कई बार आप में से भी किसी के पास होता है, कोई पुराना रिसोर्स है उसके पास होगा, and they can assign it to you. But the key factor here is that you will find for a person or resource who has owner access at the subscription level. Is it clear? Yes. yes. Yeah. So let's say that they have given you the permission, you logged off, logged in, and आपको permission मिल गई. Now you are creating a resource group. Because client asks you to create a resource group. अगर client ने बोला होता existing use कर लो तो आप existing use कर लेते, provided you have access to that resource group. Existing में भी आपके पास resource group में नहीं होता, again you would have reached to that particular resource group के owner के पास and you would have shared कि मुझको ऐसा ऐसा request आया है, this is my business justification, hence I need a contributor access on your resource group. Is this clear, guys? Are you getting it? Are you confused? See, we are not only learning technical. यहाँ पर मैं धीरे धीरे आपको ये बता रहा हूँ कि रियल टाइम में काम भी कैसा होता है. Because when you guys go for the interview, टेक्निकल तो आएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी आपको सब बताना होता है. देन ओनली इट लुक्स रियलिस्टिक. अदरवाइज सिर्फ बुकिश डेफिनेशन देने वाले आंसर बहुत मिल जाएंगे. सो आर यू गाइस गेटिंग इट कि किस तरह से Yeah. रिक्वेस्ट आता है? ईमेल Yes. आएगा, मे बी बिल शीट आ जाएगा, कोई टिकट आएगा, अटैचमेंट आ जाते हैं कई बार एक्सेल फाइल में, कई पीपीटी आता है, और कई बार सिंपली ईमेल में लिखा होता है, नोटपैड आ जाता है कई बार तो. ये सारी चीजें आती है. एंड देन इफ यू डू नॉट हैव एक्सेस, यू कैन अप्रोच दैट ओनर. वो ओनर डेफिनेटली पूछेगा, आपको ब्लाइंडली एक्सेस नहीं दे देगा. आपने मेरे सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस मांगा, मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा आप मेरे टीम में हो और दे दिया, नहीं. इवन इफ आई नो यू पर्सनली, आई एम बाउंड टू आस्क यू कि व्हाई डू यू वांट एक्सेस ऑन माय सब्सक्रिप्शन, व्हाई डू यू वांट एक्सेस ऑन माय रिसोर्स ग्रुप, व्हाट इज द बिजनेस जस्टिफिकेशन. तब आप इस टिकट को अटैच करोगे, फॉरवर्ड करोगे, ईमेल ये करोगे कि आई हैव गॉट दिस रिक्वेस्ट, हेंस आई नीड इट. तब वो अप्रूव कर देगा. तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेड हो गया कि आपको किसने एक्सेस दिया और क्यों दिया. Is it clear? Once that is there, then you will go ahead and type the virtual machine name. Who will decide the virtual machine name? Do you think you should decide? Client. Yes, of course. Obviously, client will decide that. It's his virtual machine. आप technical ये हो, you're just helping him to create. Naming वगैरह वो decide करेगा. And उसमें भी guys, most of the time, कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई क्लाइंट आ जाएगा कि यार किसी क्रिकेट टीम के नाम पे मशीन का नाम रख दो, ये मेरे बच्चे के नाम पे रख देना, सिटी के नाम पे रख दो, ये कर दो, वो कर दो. नेवर, इट विल नेवर हैपन. ऑल द कंपनीज विल ऑब्वियसली हैव अ नेमिंग कन्वेंशन फाइल. एक कन्वेंशन फाइल यूज करते हैं वो, तो जिसका कुछ ऐसा कोड वगैरह होता है. फर्स्ट उनके कंपनी का नाम होगा,
ठीक है, then what kind of machine are you creating? Is it a dev or prod or test? So अगर टेस्ट मशीन बना रहे हैं तो लास्ट में वो लोग टेस्ट लिखते हैं. Is it a Linux machine or Windows machine you're creating? Windows machine बना रहे हो तो आपको W लिखना पड़ेगा. Is it your first machine? 001 कर दो. Is it your second machine? इसी को आगे 2 करेंगे. ठीक है. ये हो गया कंपनी का नाम. व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन आर यू डूइंग? तो ही सेज कि यार कोई मार्केटिंग की एप्लीकेशन है मेरी. तो कौन से डिपार्टमेंट से हो? मार्केटिंग. सो लेट्स से मार्केटिंग. इसको शॉर्टकट बना रखा होगा उन्होंने. ओके, व्हाट आर यू क्रिएटिंग? वीएम. ठीक है. तो इस तरह से कुछ जो है ये लोग नाम की नेमिंग कन्वेंशन बनाते हैं. कई लोग इसको लोकेशन पे भी करते हैं कि कहाँ पर है आपका डिपार्टमेंट, विच पुणे लोकेशन में है, तो पुणे को ऐड कर दो. इट कुड बी एनीथिंग. देयर इज नो फिक्स्ड. माइक्रोसॉफ्ट से कोई फिक्स नहीं है, बट कंपनीज का अपना अपना हमेशा एक फिक्स्ड जो है ये होता है, नेमिंग कन्वेंशन होता है. एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, विंडोज कभी पहले होगा, बाद में होगा, इट्स अप टू, वो सब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है. ये आर्किटेक्ट लेवल पे जब काम होता है ना, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका होता है. सो यू विल गेट अ सिमिलर नेम लाइक दिस. इस तरह से कुछ नाम मिलेगा, जो भी कंपनी का नाम होगा, जैसे भी होगा, उसमें मशीन का नंबर, विंडोज है, लिनक्स है, इस तरह से कुछ नाम मिल जाएगा आपको. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि नाम मैं कहाँ से लेकर आऊँ. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. नाम देना उसका काम है. ठीक है. नाउ इफ आई ऑलरेडी हैव अ मशीन विद दिस नेम, कैन आई क्रिएट अनदर मशीन विद दिस नेम? No. 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 Of course not, right? Hence it is necessary to have a unique name. तो अगर किसी क्लाइंट ने आपको ये नाम दे दिया and you are trying to create this machine, let me check, give me 1 moment. If client has given you this machine, this name, कि यार इस नाम की मशीन बना दो, and if you try to create one, you will get an error at the end that this machine is, यहाँ पर अगर क्लियर भी हो रहा है, at the end you will get an error. What is the machine name? Let me check. This is the machine name. And Region. no, it's not region No, specific. no, You ID, cannot ID. you cannot have 2 machines just because regions different है, इसलिए आप मशीन रख सकते हो, ऐसे नहीं होगा. ठीक है. So ultimately you will get an error here. The moment you go ahead and try to create, you will get an error here that this machine name already exists. So you have to make sure कि वो नाम unique हो. You as in your application owner will do that. और उनको पता होता है कि हमारे पास ऑलरेडी 5 मशीन है. This is the 6th one I am requesting. रीजन एज ऑफ नाउ हम सब ईस्ट यूएस लगे, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह बाद में करने वाले हैं. ठीक है. अवेलेबिलिटी जोन, यू विल ऑलवेज टेक नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी. ऑलवेज एज इन जब तक हम ये टॉपिक्स पे नहीं आते हैं. व्हेन आई से ऑलवेज, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्शन गाइस. ठीक है. व्हेन वी कम हियर एंड वी डिस्कस अवेलेबिलिटी जोन, रीजन एटसेट्रा, उसके बाद आपके टास्क में मैं इसको भी ऐड करूंगा, दैट डू व्हिच रीजन आई वांट, what kind of availability option I want, ये सब हम ऐड करेंगे. बट एज ऑफ नाउ ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा when I give you task to create a machine. ये इन्फॉर्मेशन ये आप अपने अपने लेवल पे सेलेक्ट कर लेना. ठीक है. यू कैन यूज योर ओन नेम. इट बिकम्स इजी फॉर मी टू चेक द मशीन. अदरवाइज हर बार मुझको जाके सर्च करना पड़ता है. बट नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. एज ऑफ नाउ यू कैन यूज योर ओन नेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर Sam is creating a machine, Sam can use something like this. So I will come to know कि ठीक है, this is Sam's machine और ये Windows machine है because he has written W at the end. Right? और ये first machine है. He creates the second machine, second कर दो. He creates the third machine, उसको third कर दो. It becomes easy for me to check. Otherwise, technical obligation कुछ नहीं है. Whatever you want to do, as far as it is not being repeated. Region, you will always select East US till the time we cover that. ठीक है. Security type, will always go ahead with standard. Difference क्या है इसमें? You guys can read it here if you want. Otherwise, let it be. उतना important नहीं है, कोई नहीं पूछेगा. Now, image. This is very important, guys. What do you understand by image? Looking at this, what do you understand by image? Fine, sir. Operating system. Operating system, right. Now, do you think you have technical knowledge, very good knowledge, सब कुछ आपका काफी अच्छा है. ठीक है. You are a senior engineer, architect हो आप, सब कुछ है. But do you think on behalf of client, you are in a position to select the operating system? No. Can you decide कि इसको Windows देता हूँ, इसको Linux देता हूँ, इसको 2019 देता हूँ, इसको 2022 देता हूँ? Is it possible? Do you think? No, as per your client Not at all, requirement. because you don't know कि वो marketing वाली team उसके साथ आगे क्या करने वाली है. Are they using Java on that? Are they going to use Python on that? मैंने उसको Linux दे दिया, उसके ऊपर
पाइथन चलेगा, मैंने विंडोज दे दिया, पाइथन चलेगा ही नहीं, राइट? सो आई एम नो वन टू डिसाइड दैट। मैंने उसको 2019 वर्जन दे दिया, बट उसका एप्लीकेशन कंपैटिबल 2022 में ही है सिर्फ। सो आई एम नो वन टू डिसाइड। ये इंफॉर्मेशन भी स्पेसिफिकली क्लाइंट से आनी चाहिए। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, you will send an email back to client that this information is missing. Could you please confirm which operating system are you looking for? जब तक ये सारी चीजें कंफर्म नहीं होती है, नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। वाई? बिकॉज ये जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं ना, इसी में मैंडेटरी चीजें जब तक फिल नहीं करते, दे डू नॉट गेट एन ऑप्शन टू सेंड। सेंड का ऑप्शन ही मिलता है, सेव का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। सो यू विल नेवर सी अ रिक्वेस्ट। स्टिल कभी रह जाता है कोई ग्लिच वगैरह की वजह से, यू विल नेवर डिसाइड इवन इफ द इंटरव्यूअर इज आस्किंग कि ओके गिव मी एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, you will probe okay, still can you tell me, are you looking for Windows, are you looking for Linux, what is your requirement, what kind of application are you trying to run? But he says नहीं, मुझको बस टाइम पास के लिए मशीन चाहिए, then ठीक है दे दो कुछ भी। but it never happens, ऐसा कभी नहीं होता है। so this is their job to give you a machine's version। so I will give you, किसी को मैं लिनक्स का बता दूंगा, इफ समवन आई फाइंड के कोई लिनक्स बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको हम लिनक्स का बताएंगे, नहीं है तो मोस्टली विल स्टिक टू विंडोज। ठीक है, एंड दीज आर नॉट दी ओनली वन। इस पे सी ऑल पे करोगे आप तो बहुत सारे ऑप्शन है। आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज हमको फिलहाल वो देखना भी नहीं है। आज हम बेसिक मशीन क्रिएट कर रहे हैं। सो विल स्टिक विद 2019, लेट्स स्टिक टू 2019 64 जनरेशन 2। ठीक है, इसके बाद लुक एट दिस, ये प्राइस भी बताना शुरू कर रहा है साइड में। ठीक है, डू नॉट चेंज एनीथिंग हियर, आर्किटेक्चर में कुछ चेंज नहीं करना है। स्पॉट डिस्काउंट नहीं चाहिए मुझको। स्पॉट डिस्काउंट में क्या हो जाता है, वो मशीन बंद कर देते कभी भी। सो एज ऑफ नाउ आई डू नॉट वांट इट। साइज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन you are no one to discuss this or decide this on behalf of client. Client should be able to give this. हाँ, क्लाइंट को एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि यार इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइज, मशीन के साइज का क्या मतलब होता है। लुक एट दिस, दीज आर द साइजेस। Sorry, what was that? If someone is asking something? Okay, if not, let's proceed. So size का क्या मतलब होता है guys? To see all size, you have to click here first thing. Guys, please do not use mobile. Use your laptop and keep an eye on the cursor. Later on, you will say यार यहाँ कहाँ से चले गए, वो कहाँ से हो गया, ये मिस हो गया, and then you will not be able to relate anything. And if you see कि मैं इस पेज पे कहाँ से आ गया, you missed that, do not hesitate, feel free to ask me. Okay, तो हम यहाँ पर है अब तक साइज वाले पेज पे। साइज में if you want to see all sizes, you click here, see all sizes. अब साइज होता क्या है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार आता है, दैट ऑन व्हाट काइंड ऑफ साइजेस हैव यू वर्कड, या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइज कौन सा यूज किया आपने, राइट? सो इफ यू क्लिक ऑन ऑल साइजेस, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये सीरीज मिलेगा इनका। दे टॉक अबाउट सीरीज ऑल्सो, विच सीरीज हैव यू वर्कड ऑन मोस्टली, राइट? तो आप ये इसको आके चेक कर सकते हो। सी मोस्ट यूज्ड बाय अज्योर यूजर्स, ये वाली सीरीज है, कौन सी, डी सीरीज है। तो यू कैन से डी सीरीज, ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, हाई सीरीज कहाँ पर होगी पता है आप लोगों को, जहां पर कोई लेट्स से बहुत ही हैवी बड़ा आप लोगों को ये करना है, प्रैक्टिकल करना है, जिसमें एक्सट्रीम लेवल का डेटा, आपके एप्लीकेशन ओनर्स जो एक्सट्रीम लेवल का डेटा यहाँ वहां करने वाले हैं, जो मशीन अगर हम खरीदने जाएंगे तो उसका कॉस्ट एक्चुअल में 5-6 करोड़ का कॉस्ट होगा उस मशीन का। सो दे डू नॉट वांट टू बाय दैट। उस तरह की मशीन्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो मशीन्स भी, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आपके इसमें सब्सक्रिप्शन में सपोर्टेड होगी, बट यू विल सी ऑल ऑफ देम। सो यू डू नॉट यूज दोस मशीन्स ऑन रेगुलर बेसिस, राइट? जिस मशीन का रैम 1000 GB हो, जिसका सीपीयू में जो है 1000 CPU लगे हो, इस तरह की मशीन यू विल नॉट यूज डेली, उसका कॉस्ट भी बेयर नहीं कर पाओगे। तो वो सारी सीरीज यहाँ पर होगी, नीचे होगी, यू कैन गो अहेड एंड चेक कौन कौन सी सीरीज में क्या होता है। ठीक है, कहीं पर यू वांट स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइन वाला कंप्यूटर, क्योंकि आपको कोई गेमिंग का टेस्ट करना है, सो यू कैन कम हियर एंड चेक कि ग्राफिक डिजाइन वाली कौन सी सीरीज है। ऑल दैट यू कैन चेक। इंटरव्यू में इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, इंटरव्यू में नॉर्मली आता है रेगुलर कौन सी सीरीज यूज करते हो। सो रेगुलरली डी सीरीज काफी यूज होता है। डी सीरीज इट इज फॉर जनरल पर्पस, लुक एट दिस, जनरल पर्पस। ठीक है, कोई आपको अगर मेमोरी ऑप्टिमाइज चाहिए, कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपको रैम बहुत ज्यादा चाहिए, जिसमें सीपीयू का यूज बहुत कम होने वाला है, तो लुक एट दिस, डी सीरीज में मेमोरी ऑप्टिमाइज टाइप आता है, जिसमें सिर्फ एक सीपीयू है एंड 14 GB रैम है, राइट? सो उस तरह से आप साइज डिस्कस और डिसाइड करते हो, बट यू डू नॉट डिसाइड, यू कैन एक्सप्लेन मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सप्लेन क्लाइंट के साथ कॉल पे जाके, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन आर यू यूजिंग,
क्योंकि when someone is developing the application, वो application development का काम होता है उसका compatibility बनाना। अगर मैं एक एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ ना, तो आई डिसाइड मेरी एप्लीकेशन का कोडिंग कैसा है, वो मेरे पास उसका स्पेसिफिकेशन होगा कि भाई मेरा ऐप चलने के लिए योर मोबाइल शुड हैव मिनिमम ऑफ 8 GB, 6 GB वाला रैम पे मेरा एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन ओनर को कौन देता है? जिससे इसने कोडिंग करवाई है, डेवलपमेंट टीम देती है। यू कैनॉट डिसाइड, एप्लीकेशन को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ले लो वो ले लो, यू कैनॉट डू दैट, बिकॉज आप कॉस्टली ये ज्यादा दे दोगे। लुक एट दिस, आप बोलोगे चलो सेफर साइड यार क्या करता हूँ ना, मैं इसको 8 CPU और 32 रैम दे देता हूँ, सब चल जाएगा इसमें, मुझको पता है। बट वॉट आर यू डूइंग विथ हिम? यू आर कॉस्टिंग हिम 23,000। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू कुड हैव आस्क्ड हिम, एक्चुअल में आप प्रोबिंग करते और आपको पता चलता कि ये एप्लीकेशन जो है ना 2 CPU और 5 GB रैम में चल जाती, सो व्हाट यू कुड हैव ऑफर्ड हिम? लुक एट द पेज एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू कुड हैव ऑफर्ड हिम? मुझको मेरे डेवलपमेंट टीम ने बता दिया कि ये 2 CPU और 5 GB रैम के साथ चल जाएगा। व्हाट डू यू थिंक यू शुड ऑफर हिम? D2S D2S version V3. यस, V3 सिंपल, यहाँ पर कवर हो गया। उसमें भी अगर आप पूछते हो कि यार 4 GB रैम पे चलेगा क्या, एक बार चेक करके देखो, 4 पे चलता है। सो व्हाट आर यू डूइंग फॉर क्लाइंट? 23,000 से उसके आपने कितने पैसे बचा लिए? सीधा आप उसको 5,000 या 2,000 पे लेकर आ गए। दिस इज द ओनली रीजन क्लाउड एडमिन की सैलरी वगैरह में इतना हाइक होता है, बिकॉज क्लाउड एडमिन जो है हमेशा अपने क्लाइंट के पैसे बचाता है। सो इफ यू डोंट डू दैट, देन यू आर ऑफ नो यूज, राइट? आप ये नहीं कर सकते हो कि यार यहाँ से सबसे बड़ा वाला उठाकर दे देता हूँ, सब चल जाएगा उस पर, टेक इट एंड लीव। चलेगा टेक्निकली, यू आर राइट, बट उसको जो बिल आने लगेगा अल्टीमेटली क्लाइंट भाग जाएगा, यू विल लूज ऑन योर क्लाइंट, राइट? सो इट इज वेरी क्रूशियल यू डिस्कस, लेकिन उसमें आप ये भी नहीं करोगे, खुद से कुछ भी नहीं करोगे, उनका डेवलपमेंट टीम आप गाइड करोगे दैट प्लीज आस्क द मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम योर डेवलपमेंट टीम। मिल गया, चलो डिसाइड हो गया, ठीक है। डेटा डिस्क कितनी चाहिए आपको? 4 चाहिए। अगर ही से 3 चाहिए, ये कस्टमाइज नहीं हो सकता गाइस, बाय द वे वन थिंग, साइज कैन नॉट बी कस्टमाइज। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि लाइक आरबैक में मैंने बताया था आपको कस्टमाइज रोल हो सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार मुझको 2 CPU देना और 5 रैम देना कहीं से बढ़ा के, तो नहीं हो सकता है। वो आपको फिर मिनिमम नियरेस्ट जो है ढूंढना पड़ेगा कि 5 GB रैम मांग रहे हो, विल इट वर्क इन 4 GB? चल जाएगा 4 में? नहीं है तो क्लोजेस्ट आपके पास 7 है, यू विल हैव टू टेक दिस, ठीक है, ऐसे कुछ। बट वो बोल रहा है कि 7 में यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हाँ, आइस किसी 14 है, 8 वाले में 16 है, मेरा रिक्वायरमेंट तो 16 था, देन यू विल हैव टू गो विद 8। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट फ्रॉम क्लाइंट। मैक्सिमम ये इतना डिस्कस कोई नहीं करता है, आईओप्स डिस्कस कर देते हैं, बताते हैं कि मुझको मिनिमम आईओप्स इतना चाहिए, डिस्क कितने लगने चाहिए मिनिमम, ये मिनिमम डिस्क की बात चल रही है। नाउ व्हाट आर दीज डिस्क, आई विल एक्सप्लेन। इट इज एज गुड एज, समझ लो कि आपके फोन में मेमोरी कार्ड कितने लगेंगे, 4 मेमोरी कार्ड लगाने के स्लॉट है, वैसा फोन चाहिए मुझको, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, 8 GB रैम, ठीक है। बट यू गेट दिस साइज फ्रॉम क्लाइंट, नॉट नेसेसरी वो एग्जैक्टली ऐसा लिख कर नहीं देता है क्लाइंट कभी भी। और ये दीज ऑल दीज थिंग्स दे कीप ऑन चेंजिंग, ये कभी एक जैसा नहीं होते। टुडे यू सी D2S V3 में 2 है मिनिमम, कल ये 4 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो क्लाइंट कभी भी आपको लिखित में नहीं देगा, नाम नहीं देगा ऐसा। क्लाइंट विल मेंशन that I am looking a machine somewhere around 2 virtual CPU, 6 GB RAM, 3 disk, बस इतना बोलेगा। यू विल हैव टू कम हियर एंड चेक दिस, और एक बार उसको बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट वी आर फिगरिंग आउट फॉर यू, देन यू सेलेक्ट इट, ठीक है। बट इन योर होमवर्क थिंग आई विल बी वेरी स्पेसिफिक कौन सा साइज चाहिए, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इज इट क्लियर गाइस? Yeah. Yes. बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट व्हेन आई गिव यू द करेक्ट साइज, यू सेलेक्ट द करेक्ट साइज। ये नहीं हो कि मैंने आपको साइज दिया और आपने कोई और सेलेक्ट कर दिया, डोंट डू दैट। हियर द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये ना आपका अज्योर की यूजर आईडी की बात चल रही है ना कोई, ये यूजर आईडी बन रहा है उस मशीन का, जो मशीन आप बना रहे हो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड की बात चल रही है। इज इट क्लियर गाइस? कौन से यूजर आईडी एंड पासवर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? Yes. सोहेल, यस, होमवर्क के लिए हमारे कुछ कुछ के पास तो ईमेल आईडी पासवर्ड है ही नहीं है अजूर का। अज्योर का ओके पोर्टल, वी आर हाँ, वर्किंग ऑन पोर्टल दैट, का। वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी सुनील ने बनाया है, कुछ लोगों को एक्सेस दिया है, नाउ दीपक इज क्रिएटिंग, वो कुछ लोगों को एक्सेस देगा। आई एम स्टिल वेटिंग, कुछ लोगों ने कंफर्म नहीं किया गाइस कि कितने लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कितने नहीं, आज या कल में फाइनल हो जाएगा। डोंट वरी, ये प्रैक्टिकल अब पूरा वीक चलता रहेगा। आई विल बी कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, ज्यादा भी हो तो कॉल भी कर सकते हो आप।
और उस बीच में हम इसको अपडेट वगैरह करके आई कीप ऑन अपडेटिंग कि आप लोगों के आईडी बन गए हैं, यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आई नो दैट कि सबके नहीं है। आई वी आर वर्किंग ऑन दैट, डोंट वरी। सुनील ने क्रिएट कर लिया है, कुछ लोग उसमें कवर हो गए। दीपक इज क्रिएटिंग टुडे, कुछ लोग उसमें कवर हो जाएंगे, राइट। एंड विल सी कि 2 में ही सब कवर हो जाएगा या तीसरा मुझको बनाना पड़ेगा, विल सी दैट, बट डोंट वरी, you will have that. Okay, so this user ID and password, guys, this is for your operating system. जिस मशीन में आप लॉगिन करने वाले हो ना, ये उसका है, ये यूजर इसका अज्योर का नहीं है। और ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड, आई अर्ज यू कि आप सारे के सारे सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज करो, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू चेक। ठीक है, यू कैन यूज द यूजर आईडी एज टैप आउट, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी आपको क्लाइंट से मिलेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट योर मशीन, अंडरस्टैंड, यू आर जस्ट क्रिएटिंग, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द मशीन। ओनर कौन है इस मशीन का? इसने आपसे रिक्वेस्ट किया, सो ही विल डिसाइड यूजर आईडी और पासवर्ड क्या होगा। या समटाइम्स पॉलिसी होती है इसकी, कई बार पॉलिसी ही होती है कि ये यूजर आईडी होगा, ये पासवर्ड होगा। ठीक है, सो दिस वन ऑल्सो यू विल गेट, इस केस में भी आई विल गिव इट टू यू। पोर्ट्स, एज ऑफ नाउ सेलेक्ट ऑल पोर्ट्स। इसको मैं बहुत थरोली एक्सप्लेन करूंगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज ऑफ नाउ सेलेक्ट ऑल पोर्ट्स। क्लिक ऑन नेक्स्ट। डिस्क, कोई एक्स्ट्रा डिस्क चाहिए नहीं चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वाले सेशन में करूंगा। आई डोंट वांट टू गिव यू टू मच ऑफ प्रैक्टिकल टुडे कि एक्स्ट्रा डिस्क क्या होती है कैसे, तो यहां पर भी आप कुछ चेंज नहीं करोगे एज ऑफ नाउ। ठीक है, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिटेल टॉपिक है, बैकबोन है पूरे Azure का। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द नेटवर्किंग, यू वोंट अंडरस्टैंड द Azure और एनी क्लाउड फॉर दैट मैटर, Azure हो, GCP हो, AWS हो। इसलिए मैंने कुछ बेसिक वीडियोस भेजे, स्टार्ट वॉचिंग देम before we come to network session. I want you guys to please finish on that, then only you will understand. So अभी तक हमने networking cover नहीं किया है, so we are not going to touch anything here as it is। next कर दो इसको, and do not guys, do not go and create review and create directly। आप चाहो तो जा सकते हो यहाँ पर, इन सबको डिफॉल्ट ही रखना है तो why to go one by one, but I want you to go one by one एंड इसको चेक करो, 1 by 1 जाके पढ़ो थोड़ा सा। डोंट चेंज एनीथिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। वी विल गो स्क्रीन बाय स्क्रीन एंड ऑप्शन बाय ऑप्शन, ये सब हम देखने वाले हैं। नॉट टुडे, तो टुडे वी आर जस्ट लुकिंग एट द वर्चुअल मशीन क्रिएशन। ठीक है, इस सबको भी ऐसे ही छोड़ दो। पोर्ट्स वहां पर आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो अंडर नेटवर्किंग एवरीथिंग स्टेज बाय डिफॉल्ट। Monitoring, leave everything by default. Monitoring में हाँ ठीक, मैनेजमेंट, ओके मैनेजमेंट में एक काम करो गाइस, अंडर मैनेजमेंट ऐप, आई होप यू आर गेटिंग राइट, wherever I am hovering my mouse, you guys are able to see it, right? So this is the tab I am talking about. मैनेजमेंट में आप एक काम करोगे, इनेबल ऑटो शटडाउन, इसको आप इनेबल करोगे। आई विल गिव यू, ये भी आपके बिल शीट में हमेशा आता है। इफ दे हैव नॉट टॉक अबाउट ऑटो शटडाउन, उनका कोई ऐसा सर्वर है जो 24/7 चलना है, दे विल नॉट से अबाउट इट। बट उनका कोई ऐसा सर्वर है जो सुबह के डेवलपर 9 बजे चालू तो कर देता है, 3 बजे काम करके चला जाता है, उसमें 2 घंटे स्क्रिप्ट चलती है और 5 बजे वो बंद हो जाना चाहिए, राइट? सो व्हाई शुड आई पे? अज्योर में ये बेनिफिट है। ऑन प्रीम में ऐसा होता था, मैंने एक बार सर्वर ले लिया ना तो मैंने पे कर दिया। अज्योर में मैं सर्वर को शट डाउन करके रखूंगा तो आई वोंट बी बिल्ड फॉर दैट टाइम। तो मैं सर्वर यूज तो कर रहा हूँ 9 to 5, तो जब 5 से लेके दूसरे दिन सुबह तक का टाइम है, व्हाई शुड आई पे फॉर दैट? सो आई वांट अ फीचर जो उसको ऑटो शट डाउन करे, बिकॉज मेरा डेवलपर 3 बजे स्क्रिप्ट लगा के निकल जाता है। सो दिस इज द फीचर व्हिच इज कॉल्ड इनेबल ऑटो शट डाउन। सो आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन दिस, और जो भी मैं आप लोगों को दूंगा टाइम, ठीक है, उस टाइम को आप यहाँ पर लगाओगे। डू नॉट फॉरगेट, फॉर एग्जाम्पल दिस मशीन I want to keep a time कि ये कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, राइट? So let's say 2 PM this should be shut down। तो अगर कोई चेक ना भी करे कुछ, तो अपने आप शट डाउन हो जाए, अननेसेसरी की बिलिंग मुझको नहीं चाहिए। ठीक है, दिस वन थिंग you will change under management, rest everything stays unchecked default। and this notification वाले को अनचेक कर देना, because the moment you put notification, फिर वो email configuration, बहुत सारी चीजें होती है, it is not mandatory thing। so only this part, auto shutdown part, you will change। और ये भी information मैं आपको दूंगा that what time I want, which time zone I want। monitoring, leave it। so we worked in basic। disk में पूरा डिफॉल्ट, नेटवर्किंग में डिफॉल्ट, मैनेजमेंट में सिर्फ एक ऑटो शटडाउन, मॉनिटरिंग में डिफॉल्ट, एडवांस में डिफॉल्ट।
स्टैक बहुत बेसिक चीज है, बट वी हैव ओनली 2 minutes लेफ्ट, तो इसको मैं बाद में कभी कवर करता हूँ. देन यू जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट. एक बार सब यहाँ पर आकर देख लेना अच्छे से. It is validating the details. Validation passed. Now you can create a machine. I told you at the time of creation, where will you check? ये कहाँ चेक करोगे इसका स्टेटस? बन गया नहीं बना? Where will you check? Notification. Notification. So let's click on notification. Look at this. It is submitting the deployment request. Now it has been submitted. Deployment request is in progress. So यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख भी जाएगा लेफ्ट में. एक बार ये बन जाएगी. So how will you connect to this machine, guys? इस मशीन को कैसे कनेक्ट करोगे? RDP. RDP, right? So RDP के लिए you guys will have to log into your computer, Windows computer. If someone has Mac, connect me separately. I'll show you how to use Mac for RDP. ये मशीन एक बार बन जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है? You have to go to your start menu, search for RDP, click here. Okay, once you do that, ये पॉपअप आएगा आपको, RDP का पॉपअप आएगा इस तरह से. And you have to type that machine's IP address here. So where will you get that machine's IP address? You'll have to go to that machine. We'll have to wait कि वो machine ready हो जाए पहले. Is it ready? Looking at the notification, what do you think? Is the machine ready? Yes. Yes. So let's go to resource. आप यहाँ से भी जा सकते हो, आप यहाँ से फिर से virtual machine search भी कर सकते हो. And यहाँ पर आपको अपनी machine दिख जाएगी. यहाँ पर आप आ गए. And this is the IP address I'm talking about. ये IP address को आपको copy करना है. RDP में आना है. Paste करना है. I'm going a little bit faster, guys. Only 30 seconds are left. कनेक्ट करना है. And which password and user ID you will use here, guys? कौन सा user ID and password use करोगे? Which is set up while creating the virtual machine. Yes, at the time of creation जो password और user ID मैंने आपको बताया था, that you'll use and you will connect to your virtual machine like this. बस इतना ही आपका प्रैक्टिकल है आज के लिए. ठीक है. So I'll send the details. I'll upload the recording. Check it again. I will share the steps तो नहीं. I will share the details and you guys will have to create it. Session will close, guys, now. Okay, Okay, session alright. will get closed. Thank Only you. 1 minute